हेलो फ्रेंड्स, आईएएस यूपीएससी 2017 एग्जाम और विभिन्न स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये हमारी एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स की ऑथेंटिक सीरीज है। जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो द हिंदू का 1 अगस्त 2016 का एडिटोरियल है। एडिटोरियल का हेडिंग है रिटर्न ऑफ द ग्रेट डिल्यूज। इसका अर्थ हुआ बड़ी बाढ़ की वापसी। आइए सबसे पहले हम इसमें से गो थ्रू होते हैं, एक रीडिंग लगाते हैं इसकी। उसके बाद हम इसके जो वोकैबुलरी के टिपिकल वर्ड्स हैं, मुश्किल शब्द हैं, उनको हम वोकैबुलरी में कवर अप करेंगे, उनके मीनिंग्स जानेंगे और उसके बाद इसको पूरे एडिटोरियल को हिंदी में सरल भाषा में समझेंगे। आइए रीडिंग लेते हैं। वंस अगेन ए vigorous monsoon so vital to India's economic fortunes has left some states in a shambles. From Assam to Karnataka, heavy rainfall in a short span of time has created paralyzing floods that have taken a heavy toll of life, wiped out crops and destroyed hard-earned assets. When the waters recede, a familiar cycle of assessment of damage by central teams, preparation of loss estimates, and expensive restoration work such as repairs to river embankments will follow. In Assam, where 31 deaths have been recorded already, there are projects to strengthen the embankments of the heavily silted Brahmaputra. The flood control department as well as the disaster relief force have well funded budgets, yet the hundreds of crores of rupees periodically spent on flood preparation, relief and mitigation research in the state have not yielded a protocol that reduces the impact of heavy rain. The swollen river invariably dissolves the weak earthen embankment overnight. Now that another furious season is providing Now that another furious season is providing fresh insight into the causes, effects and impact of rain and floods in the northeastern India and elsewhere, it is time that center took a coordinated view in tackling the crisis. To begin with, it has to review the efficiency of the flood forecasts issued by nearly 180 specialized stations now in operation and the pattern of responses of the 19 states and union territories that receive these alerts. Urban India is no less traumatized by floods, but city governments have not learnt too many lessons from devastation and losses. The scenes of gridlock and frustrations in Gurgaon, Bengaluru and Delhi last week travelled around the world just months after the disaster in Chennai. Can there be a surgical solution to sclerotic urban planning? Bengaluru is the epitome of governmental indifference to wetlands, most of which have been severely encroached upon and polluted. Being able to live with floods in today's dense cities require that these lakes be desilted and restored on a war footing. New artificial wetlands may have to be created to compensate for those that have already been built over. The spectacle of flooding and destruction should convince the Environment Ministry that it is retrograde to sanction large real estate projects without an environmental impact assessment. Some real estate companies have been slapped with penalties by the National Green Tribunal for encroaching upon lakes, but urban planning agencies are equally responsible and must also be called to account for tacitly sanctioning the violation. Provisioning of relief to the affected by the latest floods has to go beyond patronage politics and meet the actual needs of the people, particularly those who have suffered extreme losses.
सो दिस इज द कंप्लीट एडिटोरियल। आइए अब हम इसको थोड़ा वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे पहला वर्ड जो हेडिंग के अंदर ही आ गया है, रिटर्न ऑफ द ग्रेट डिल्यूज। डिल्यूज जो है एक वर्ड है जिसको आप फ्लड का सिनोनिम मान के चलिए। डिल्यूज का अर्थ होता है बाढ़, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली लाइन में वंस अगेन ए विग्रस मानसून, इसमें विग्रस शब्द आया है। विग्रस जो है इसका अर्थ है जोरदार। मानसून का अर्थ तो मानसून होता ही है, आप भूगोल भी पढ़ते होंगे तो जानते ही होंगे। अगला इसमें वर्ड आता है विग्रस मानसून सो वाइटल टू इंडियाज इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स हैव लेफ्ट सम स्टेट्स इन ए श्रम्बल्स। तो श्रम्बल्स, some states have been left by floods in shambles। shambles माने खंडहर। तो बाढ़ ने कुछ राज्यों में खंडहर जैसी स्थितियां, जैसा संकट पैदा कर दिया है। तो इसके बाद अगला वर्ड आता है when the water recede। recede का मतलब अपना स्थान छोड़ करके नीचे उतरना, recede, ओके। और उसके बाद अगला वर्ड आता है रिवर एम्बैंकमेंट, जो नदी के तटबंध, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड आए हैं। आगे आप चलिए वोकैबुलरी के लिए। तो दूसरे पैराग्राफ में पहली लाइन में वर्ड आता है अर्बन इंडिया इज नो लेस ट्रॉमेटाइज्ड बाय फ्लड्स। तो फ्लड्स ने जो है नगरीय भारत को भी ट्रॉमाटाइज किया है, यानी उसको ट्रॉमा, चोट पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद अगला वर्ड जो हम देखते हैं कैन देयर बी ए सर्जिकल सॉल्यूशन टू स्केलियरोटिक, स्केलियरोटिक अर्बन प्लानिंग। तो स्केलियरोटिक का मतलब है, स्केलियरोटिक का मतलब है आपका दृढ़ता पूर्वक, कठोर, कठिन, ठीक है। तो इनका मतलब यह है कि भारत में एक अर्बन प्लानिंग का अभियान सा चलाया जा रहा है जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनके द्वारा कठोरता पूर्वक। जो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, वो एक कठोर अभियान चला रही हैं नगरीकरण का, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस का। आगे आप चलिए, इसमें आया है बेंगलुरु इज ए एपिटोम ऑफ गवर्नमेंटल इंडिफरेंस टू वेटलैंड्स। इसमें तीन शब्द आते हैं। एक तो एपिटोम, एपिटोम जो है इसका अर्थ है प्रतीक, ठीक है। और इंडिफरेंस, गवर्नमेंटल इंडिफरेंस, इंडिफरेंस शब्द का अर्थ है उदासीनता, सरकारी उदासीनता, ठीक है। इसके अलावा आता है वेटलैंड। वेटलैंड जो है वो झील या कोई भी निचला स्थान जिसमें पानी भरा हुआ हो, जहां पर बहुत सारी प्रजातियां जो है वो उत्पन्न हो जाएं, जहां पर कुछ जैव विविधता उत्पन्न हो जाए। इसके बाद अगला इसमें जो फ्रेज आता है वार फुटिंग, वार फुटिंग आ रहा है। इसमें है कि लेक्स शुड बी डिसिल्टेड एंड रिस्टोर्ड ऑन ए वार फुटिंग। जो झीलें हैं उनको डिसिल्ट अर्थात उसमें से गाद निकालने का काम जो है वो वार फुटिंग अर्थात वार फुटिंग पर किया जाना चाहिए। वार फुटिंग का मतलब है युद्ध, युद्ध स्तर, ठीक है, युद्ध आधार। वार का अर्थ होता है युद्ध, फुटिंग का अर्थ होता है आधार। तो वैसे इसको जब फ्लो में हम हिंदी में करेंगे तो इसको युद्ध स्तर आप इसको लीजिए, इसके वार फुटिंग के मीनिंग को युद्ध स्तर लीजिए। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल ऑफ फ्लडिंग, यानी फ्लडिंग का जो ये तमाशा, फ्लडिंग जो है एक तमाशा बन के रह गई है, प्रतिवर्ष एक ये होता है पूरा। अच्छा, इसके बाद अगला वर्ड आता है दिस स्पेक्टिकल ऑफ फ्लडिंग शुड कन्विंस द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दैट इट इज रेट्रोग्रेड, इट इज रेट्रोग्रेड टू सैंक्शन लार्ज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विदाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका अर्थ पूरे सेंटेंस का लीजिए तो आपको रेट्रोग्रेड भी समझ में आ जाएगा वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अभी क्या है कि हमारी जो पर्यावरण मंत्रालय है उसको भी पुनर्विचार करना चाहिए अपनी इस नीति पर, कि जिसमें बड़े जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होते हैं उनको बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बिना पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन किए बिना, ठीक है, सैंक्शन दिया जाना एक पतित कार्य है। रेट्रोग्रेड माने पतित, रेट्रोग्रेड माने पतित, ठीक है। इसके अलावा लोकल बॉडीज को भी इसमें जिम्मेदार ठहराया गया है। कहा गया है कि द अर्बन प्लानिंग एजेंसीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एंड ऑल्सो मस्ट ऑल्सो बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर टेसिटली, टेसिटली माने मौन धारण करके, आंख बंद करके, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें कहा गया है लेटेस्ट फ्लड्स द प्रोविजन ऑफ रिलीफ ऑफ द फ्लड्स हैज टू गो बियॉन्ड पैट्रोनेज पॉलिटिक्स। पैट्रोनेज माने संरक्षण
पैट्रोनेज माने संरक्षण। तो हमारे जो बाढ़ के राहत के जो उपाय है वो संरक्षणवादी पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होने चाहिए। ठीक है, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी राज्य में जिस पार्टी की सरकार है केवल उसके वोट बैंक वाला जो क्षेत्र है वहां पर प्रभाव पहुंचे हमारे राहत कार्यों का, और जो विरोधी प्रकार के जनता के वर्ग हैं जिनको कि ऐसा माना जाता है कि वो वोट बैंक नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर राहत पहुंचे ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इस प्रकार थोड़ा सा इसको हिंदी में पूरा डिस्कस कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में। कोई पॉइंट वैसे छूटेगा नहीं हिंदी में जो मैं समझा रहा हूं। एक बार फिर से एक जोरदार मानसून जो कि भारत के आर्थिक भाग्य के लिए अति आवश्यक होता है, परंतु इस जोरदार मानसून के जो नुकसान है वो ये हैं कि इसने कई राज्यों को खंडहरों में तब्दील कर दिया है। आसाम से लेकर कर्नाटक तक एक बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में बहुत तीव्र वर्षा हुई है, और इस कारण से एक ऐसा बाढ़ उत्पन्न हुआ है जिसने कि पूरे तंत्र को, पूरी व्यवस्था को, पूरे सरकारी अमले को पंगु बना करके रख दिया है। और इस तीव्र बाढ़ ने एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के जान का नुकसान किया है, उनकी फसलों को नष्ट किया है, और खून पसीने से कमाई हुए उनके जो संपत्तियां हैं उनको नष्ट कर दिया है। जब पानी उतरेगा तब एक चिर परिचित चक्र चलाया जाएगा सरकारी तंत्र के द्वारा, जिसमें कि केंद्रीय दल जो है वो क्षति का अंदाजा लगाएंगे, क्षति का असेसमेंट करेंगे, और लॉस के, क्षति के जो एस्टिमेट्स हैं, एस्टिमेट्स की रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, लॉस के एस्टिमेट्स की रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, और इसके बाद जो है रिपेयर ऑफ द एम्बैंकमेंट्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, और इसके बाद जो बहुत खर्चीला अभियान चलाया जाएगा वो होगा नदियों के टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत कराने का एक बहुत खर्चीला अभियान चलाया जाएगा। आसाम में जहां पर 31 मृत्यु हो चुकी हैं, वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी जिसमें कि बहुत ज्यादा गाद जमा रहती है, उस ब्रह्मपुत्र नदी के तटबंधों को मजबूत किए जाने का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत वर्षों से चलाया जा रहा है। द फ्लड कंट्रोल और बाढ़ नियंत्रण विभाग जो है, इसके साथ साथ आपदा राहत बल और बाढ़ नियंत्रण विभाग दोनों के पास काफी अच्छी मात्रा में बजट्स का एलोकेशन है, रुपए धन का एलोकेशन काफी मात्रा में उनके पास है, दोनों के पास, यानी कि बाढ़ नियंत्रण विभाग और आपदा प्रबंधन बल जो है दोनों के पास काफी धन एलोकेट किया गया है। इसके बावजूद हजारों करोड़ रुपए खर्चने के बाद भी फ्लड प्रिपरेशन यानी कि बाढ़ के लिए पूर्व तैयारी, बाढ़ के राहत कार्यों और बाढ़ को समाप्त करने के लिए जो बाढ़ की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए जो रिसर्च अनुसंधान स्टेट की तरफ से होते हैं, इन सब कवायदों के बावजूद एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी कार्यविधि, प्रोटोकॉल जिससे कि तीव्र वर्षा के दुष्प्रभावों पर काबू पाया जा सके, ऐसी प्रोटोकॉल आज तक बन नहीं पाई है। जो उफनती हुई नदी है वो बिना किसी चूक के हमारे कमजोर तटबंधों को तोड़ करके अपना मार्ग बदल करके बाढ़ ला देती है। अब इस वर्ष एक और डरावना भयावह सीजन, एक और भयावह मौसम बाढ़ का आ गया है, और जिसने हमें एक और मौका प्रदान किया है बाढ़ के कारणों, बाढ़ के प्रभावों और तेज वर्षा के द्वारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमेशा बाढ़ ग्रस्त रहने की स्थितियां रहती हैं, उनमें एक अंतर्दृष्टिपूर्ण तरीके से समाधान खोजने के अवसर के रूप में इस वर्ष ये फिर से हमारे सामने आ गया है। टू बिगिन विद इट हैज टू रिव्यू द, तो यदि इस प्रकार का स्थायी समाधान खोजने की अंतर्दृष्टि से हमारा प्रशासन युक्त हो जाएगा तो उसके सामने पहला काम यह होगा कि सबसे पहले वो मौसम विभाग द्वारा 19 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों को अपने 180 मौसम विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इशू किए गए जो बाढ़ के पूर्वानुमान की रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी एफिशिएंसी को देखना। अर्थात इसको ऐसे समझिए, जो मौसम विज्ञान विभाग है भारत सरकार का, वो अपने 180 विशेषीकृत स्टेशनों के द्वारा 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाढ़ के अलर्ट देता है, बाढ़ के पूर्वानुमान का फोरकास्ट प्रोवाइड करता है। और हमें ये देखना होगा कि मौसम विभाग के वो बाढ़ पूर्वानुमान के जो रिपोर्ट्स हैं, उनके जो अलर्ट्स हैं, वो कितने प्रभावी हैं, कितने एफिशिएंट हैं। ठीक है। और हमें ये भी देखना होगा कि जो 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन अलर्ट्स को प्राप्त करते हैं, वो कितने अपने आप में इन अलर्ट्स के प्रति संवेदनशील है और इन पर कितना ध्यान देते हैं। अर्बन इंडिया, जो नगरीय भारत है, ऐसा नहीं है कि वहां पर बाढ़ से कम नुकसान पहुंचता हो, कम ट्रॉमेटाइज्ड होने की स्थिति आती हो, लेकिन जो नगरीय सरकारें हैं, नगरीय प्रशासन है, उन्होंने बाढ़ों की प्रतिवर्ष होने वाली घटनाओं से कुछ अधिक सबक सीखे हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता। जो दृश्य है गुड़गांव, बेंगलोर और दिल्ली में ग्रिड लॉक्स के और इसके अलावा जल भराव आदि के जो अभी पिछले सप्ताहों में सामने आए हैं, वो आज के आधुनिक समय में इंटरनेट आदि के माध्यम से पूरे दुनिया भर में फैल चुके होंगे। और ये भी देखने की बात है, चेन्नई जैसे नगरीकृत क्षेत्र में वहां भी अभी कुछ साल पहले बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं हो सकता? क्या हम कोई ऐसा गंभीर सर्जिकल सॉल्यूशन जो है नहीं कर सकते? अपनी जो अर्बन नगरीय जो आयोजना है, नगरीय आयोजना अर्बन प्लानिंग जो हम कठोरता से ये लागू की जा रही है, आमतौर पर जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो नगरीकरण का एक अभियान सा चलाए हुए हैं, जिसमें नई नई कॉलोनीज को बहुत बड़े स्तर पर डेवलप किया जा रहा है, कठोरता पूर्वक और बहुत आवश्यक सा मानते हुए। तो ये बेंगलुरु जो है हमारा, आमतौर पर अभी बेंगलुरु का उदाहरण ले रहे हैं, द हिंदू में कहते हैं कि बेंगलुरु तो एक प्रतीक बन गया है सरकारी उदासीनता का वेटलैंड्स के प्रति बेंगलुरु का प्रशासन जो है काफी उदासीनता दर्शाता है, उसका उदासीनता का प्रतीक बन चुका है वहां का प्रशासन। और ये वेटलैंड्स जो हैं वो आमतौर पर बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं बेंगलोर में, जो भी वेटलैंड्स हैं। और इसके अलावा यदि बहुत अधिक नगरीकृत जो मेट्रो सिटीज हैं, उनमें इन सघन रूप से बसी हुई सिटीज में यदि आज के समय में अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो इस प्रकार की जो बहुत सी जो वहां पर सौंदर्यीकरण के लिए कोई कृत्रिम झीलें बनाई जाती हैं, उस प्रकार की झीलों को समय समय पर गाद से मुक्त करने का बहुत अच्छा और युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाना अति आवश्यक है। और नए आर्टिफिशियल वेटलैंड्स जो हैं, नए आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह जो हैं, वो केवल पुराने बने हुए लेक्स को कंपनसेट करने के लिए ही बनाए जाने चाहिए। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो भारत सरकार की है, उनको भी ये पुनर्विचार करना चाहिए इस बात पर कि बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बिना पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के मंजूरी दे देना कितना पतित कार्य है। और इसी की वजह से ये बाढ़ और विनाश का तमाशा प्रतिवर्ष घटित होता है। इस प्रकार से जो एनओसीज मिल जाते हैं और ये सब चीजों की तरफ द हिंदू ने इशारा किया है। सम रियल एस्टेट कंपनीज हैव बीन स्लैप्ड विद पेनल्टीज। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी कुछ रियल एस्टेट कंपनियों पर बहुत अच्छी मात्रा में बहुत बड़े बड़े धनराशि के जुर्माने लगाए हैं, जिन्होंने झीलों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जो अर्बन प्लानिंग एजेंसीज हैं, नगरीय आयोजना एजेंसीज हैं, वो भी समान रूप से जिम्मेदार हैं इस प्रकार की विनाशकारी घटनाओं के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, जो कि अपनी आंख मूंद करके वायलेशंस करने वाली कंपनीज को भी मौन रहकर टैसिटली सैंक्शंस प्रोवाइड करती रहती हैं। आज
लास्टली सबसे अंत में हम ये कहना चाहते हैं, द हिंदू में ये इसका कंक्लूजन दिया गया है कि जो आपदा का प्रोविजन है, आपदा का जो पूरा एक प्रारूप है आपदा राहत, वो जो है बिना किसी प्रकार की संरक्षणवादी राजनीति के प्रभावों से मुक्त होकर और एक निरपेक्ष तरीके से जनता के हर एक वर्ग तक जहां पर बाढ़ का प्रभाव पहुंचा है उन तक पहुंचना चाहिए और उन लोगों को अच्छी मात्रा में बहुत सघन रूप से सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिनका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार ये हमारा एडिटोरियल यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।